will be revising from scratch. Okay, is there anyone who wants to say anything? Shubham, do you want to say anything? Okay, right. Welcome to your classroom. We are going to start studying the electoral process. इसके अंदर mainly सबसे पहले हम ये my first question to you is, what does representative democracy mean? Can you unmute and answer quickly? What does representative democracy mean? Sanya? Sanya? Can you unmute and answer? If you don't know, just say don't know, but unmute and answer. Common people represent party, I think so. Common people who represent what? Of the people. Of the people. Correct. So Sanya and Ajay, you are both correct. The word that you didn't use is government. Okay. So government of the people or common people representing the government. The word government is something that you both didn't use, which is the most important word. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सब के सब, जितनी हमारी इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, सब एक साथ मिलके हर डिसीजन नहीं ले सकते. तो what we do instead is we choose our representatives. We elect them through elections in a democracy. We choose them, they come to power, and then they make decisions on our behalf. Okay, so that is representative democracy. Okay, this it's given on page 75 in this do you know box, right? The second thing given in this do you know box is that Sukumar Sen was the first chief election commissioner. ये हम आगे पढ़ लेंगे, चलो. तो ये first bit आपको याद रखना है. Then we move forward to what method ensures representation, and the answer is elections, right? So elections are the way for us, the method for us which ensures representation. So it is a very important method. And then we come to the question of who holds these elections in India. So who, according to you, holds elections in India? Quickly, Nidhi. Election Commission. Great. So Election Commission holds elections in India. They are selected by, this is Election Commission. They are an anonymous body. They have 3 people in their commission. One is Election Commission, Chief Election Commissioner, and 2 other election commissioners, right? So 3 people, and these 3 people are appointed by the president. Okay. Now, what are their features? First of all, they don't have a separate staff. तो जैसे आपकी जो हमारा BR अम्बेडकर स्कूल है, उसकी जितनी भी टीचर्स है, जब भी वोटिंग होती है तो वो सब टीचर्स बैठे हुए होते हैं, and they are on duty of election commission, right? तो वैसे ही जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ होता है, they come on duty under the election commission during the election period. So they don't have a specific staff. All government employees are employees of election commission. Okay. The second thing is that they hold special campaigns to create awareness among voters, like the Voters' Day. So National Voters' Day, when they आवाज नहीं आ रहा है. अभी भी नहीं आ रहा है. Can you hear आ me? रहा है. Okay, great, thank you. Right. तो जो स्पेशल कैंपेन्स है वो होते हैं जैसे नेशनल वोटर्स डे, जिसके अंदर से हम वोटर्स के लिए अवेयरनेस रेज करते हैं टू कम फॉरवर्ड टू वोट, टू स्टैंड इन टू स्टैंड इन इलेक्शंस इवन, एंड आल्सो टू मेक योर आइडेंटिटी कार्ड्स. तो वो सारे ये स्पेशल कैंपेन्स भी इलेक्शन कमीशन ही होल्ड करता है अक्रॉस द 5 years, राइट? So two main features, they don't have a separate staff and they hold special campaigns as well, right? Then Sukumar Sen was the first election commissioner after independence in India. Then we move to the functions of election commission. तो election commission के काम अलग अलग क्या होते हैं, हम अभी वो पढ़ने वाले हैं. हम ये सब कुछ पहले ही कर चुके हैं. That is why I'm quickly revising them. If at any point you feel that I'm going very fast, you can ask me to stop. Okay? अब हम पढ़ने वाले इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है. सबसे पहला काम होता है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, कि कितने वोटर्स अब
अगले इलेक्शन में एलिजिबल होंगे। ये लिस्ट हर 5 साल में ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि हर 5 साल में कुछ लोग मरेंगे जो लिस्ट से बाहर निकाले जाएंगे और कुछ लोग पैदा होंगे। तो बेस्ड ऑन बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, ऑल ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स, कुछ लोग 18 के अबव होंगे, राइट? तो वो सारे स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हर साल आपकी वोटर्स लिस्ट जो है वो बदलती है, और ये लिस्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है। हर इंडियन सिटीजन above 18 years of age has a right to vote. So to exercise this right to vote, the citizen must be in the voters list. Now this list has been prepared by election commission, which is updated regularly by including new voters and removing the voters who have passed away, right? So election commission हमें वोटर आईडी कार्ड देती है, जिसके बेसिस पर हम जाके वोट कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर ये है। सेकंड फीचर, हम टाइम टेबल डिसाइड करते हैं और प्रोग्राम डिसाइड करते हैं इलेक्शंस का। तो हर स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं, तो हम किस स्टेट में कब इलेक्शंस होंगे, उससे पहले कब तक कैंपेनिंग हो सकती है, कब ये कैंपेनिंग खत्म की जाएगी, इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी, ये जो पूरा टाइम टेबल है ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। स्टेट वाइज कहाँ इलेक्शंस होंगे, किस किस डेट, क्या क्या टाइमिंग्स, कैंपेन के क्या क्या टाइमिंग्स होंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। Okay, so we have done 2 features till now. The third feature is that they check the background of application of candidates. तो मतलब जो कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गद्दी के लिए लड़ना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को भी इलेक्शन कमीशन चेक करता है। वो देखते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में, वो उनको देखते हैं कि क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या फिर यू नो all the details of that candidate. They check that and they ensure if that candidate is eligible for standing up in election or not. Okay, then what they do is they give recognition to political parties. अब ये recognition कैसे होता है? इंडिया में सिर्फ 2 पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। We have शिवसेना, we have अकाली दल, we have so many other parties, Aam Aadmi Party, Trinamool Congress, multiple parties, right? So how are these parties formed? Who gives them authenticity? राइट जैसे आरबीआई के स्टैम्प से, आरबीआई के थप्पे से हमारा जो नोट है वो एक वैलिड नोट बन जाता है। अगर आरबीआई का स्टैम्प ना हो देन इट इज नॉट अ वैलिड नोट ऑफ इंडिया, राइट? सिमिलरली इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी वैलिड तभी होती है जब इलेक्शन कमीशन उन्हें वैलिड ठहराए, उनका स्टैम्प इलेक्शन कमीशन अपना स्टैम्प उन पे लगाए, राइट? अब ये जो स्टैम्प है वो कैसे लगाती है? सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करती है कि क्या वो पार्टी सारी जो कंडीशंस है एक पॉलिटिकल पार्टी बनने की वो फुलफिल करती है या नहीं करती है, ठीक है? अगर कोई पार्टी एक एट अ पॉइंट फुलफिल करती हो और बाद में वो कंडीशंस फुलफिल ना करती हो, तो इलेक्शन कमीशन उसको ऑफिशियली हटा भी सकती है फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन हमेशा एक पार्टी को जब ऑफिशियली अनाउंस करती है तो वो उसको एक सिंबल भी देती है। तो जो पार्टी के सिंबल्स होते हैं वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने दिए होते हैं, वो उनके अपने प्रोड्यूस सिंबल्स नहीं होते। ये सिंबल्स उन्हें कहाँ काम आते हैं? जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो साइड में वो सिंबल्स बने हुए होते हैं, एंड वही सिंबल उस पार्टी का मेन रिकॉग्निशन पॉइंट होता है। वो उन्हें कहाँ से मिला? इलेक्शन कमीशन से मिला। सो दिस रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और रिमूविंग दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, इस सबका पूरा हक इलेक्शन कमीशन के पास है। ओके, देन कोई भी डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना इलेक्शंस के अंदर, वो भी सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कोई गलत काम किया है या फिर इलेक्शंस के रूल्स फॉलो नहीं करे, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करा, या किसी पार्टी ने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करा, तो उस एरिया में इलेक्शन कमीशन री इलेक्शंस भी करा सकता है, राइट? तो ये सबका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे होती है, ये देखने का कि सब लोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो री इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। Now, if we revise all the functions of election commission, first is we have to prepare a voters list, then we have to decide the timetable, then we have to do a background check of all applicants, then we have to give recognition to political parties and resolve any dispute related to elections. Are all of these functions completely clear to all of you? I want you all to quickly write on chat. Yes, Didi. Thank you.
Rest of you, can you quickly write on chat if all of these functions are clear? I am waiting for your responses. I can't see anyone responding. Thank you, Aditya. Thank you, Sanya. Thank you, Nidhi. Thank you, Amit. Fiza, Arman, Rakhi, Sanya, Shubham, Pradum. Is all of this clear? If it is not clear, you can ask me your doubt. अरमान, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन का है वोटर्स लिस्ट बनाना। मतलब जितने लोग 18 के ऊपर नए हुए हैं अगले 5 साल में, उनको वोटर लिस्ट में ऐड करना। दूसरी चीज, किस स्टेट में कब इलेक्शन होगा उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। तीसरी चीज, जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं, क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनकी उम्र ठीक है, क्या वो लोग वैलिड कैंडिडेट्स है, ये सब डिसाइड करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। चौथी चीज, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका सिंबल देना, उसको रिकॉग्नाइज करना, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। पांचवी चीज, अगर कोई भी लड़ाई होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, किसी ने कोई इलीगल काम किया है ड्यूरिंग इलेक्शन, जैसे अंदर अंदर जाके लिकर सेल करी है या किसी को पैसे दिए हैं अपने आप को वोट करवाने के लिए, अगर इसका कोई प्रूफ मिल जाता है तो वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। ओके, इज दिस क्लियर? अरमान, अभी क्लियर है? अरमान, ओके, ग्रेट, राइट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। हम एक बार टाइमलाइन देखेंगे इलेक्शन कमीशन की कि एक के बाद एक सीक्वेंस में क्या क्या काम होता है, ओवर 5 इयर्स क्या क्या काम है उनके पास। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश करना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, उसको स्टैब्लिश कैसे किया जाता है। फिर वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज करना, कौन वोटर है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन नहीं है, कौन हटा, कौन ऐड हुआ, वो सब प्रिपेयर करना। फिर कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन सिलेक्ट करना। और मतलब हम सारे फंक्शंस को एक अलग टर्म में लिख रहे हैं अभी, ठीक है, ये सब फंक्शंस ही हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना, वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज करना, कैंडिडेट्स को देखना कि वो सही कैंडिडेट है नहीं है, तो इवेलुएटिंग देयर कैंडिडेचर। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड सारे रूल्स बनाना, एक्चुअल वोटिंग को होस्ट करना, नंबर ऑफ वोट्स को इवेंचुअली वोटिंग के बाद आप नंबर ऑफ वोट्स काउंट करते हो तो वो वोट्स काउंट करना, इलेक्शन के रिजल्ट रिलीज करना, और अगर रिजल्ट रिलीज करने के बाद कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ये सारे ओवरऑल काम है, टाइमलाइन है इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज की। ये फ्लो चार्ट की तरह, कॉन्सेप्ट चार्ट की तरह आ सकता है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, इसमें कुछ नया नहीं था, हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके थे। Arman, it can be your internet, nobody else is having that issue, right? Now, do you think constituency means states? Do you think constituency means states? What does it mean then? Aditya Mishra, can you tell me what does constituency mean? How is it different from state? District, very close, right? So it is like a district, but basically there are 543 constituencies in India and there are 27 states, right? So what is exactly a constituency? It is a group of voters who elect a representative from their area. Okay, now it is not equal to a district also. District is also a larger term, but जैसे आपके इलाके में, जैसे आप समझ लो कांदीवली वेस्ट से, आप कांदीवली वेस्ट अपना हो गया एक इलाका, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने एक इंसान को इलेक्ट करा है, तो हम जो ग्रुप है कॉमनली जिसने एक इंसान को इलेक्ट करा है, दैट ग्रुप ऑफ वोटर्स मेक अप अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। The total number of members in constituency are 543. One second. Sumit, I'm muting you.
Yes, total number of members in Lok Sabha is 543 and they represent, each member represents one constituency. ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वोटर्स ने एक इंसान को इलेक्ट करा, वो एक इंसान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा के अंदर. नाउ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना, लोग एरिया वाइज स्टेट्स को डिवाइड करना, इसका काम जो है वो है इलेक्शन कमीशन का, राइट? तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, हम छोटे छोटे एरियाज डिवाइड करते हैं डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन. तो जैसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक मिनिमम पॉपुलेशन होनी ही चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करते हैं. तो जैसे जो बांद्रा साइड की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कंपैरेटिवली लार्जर होगी एज कंपेयर टू कांदीवली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पीपल लिविंग इज कंपैरेटिवली लेसर, राइट? तो उस तरीके से नंबर ऑफ डेंसिटी के डिपेंडेंट हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करते हैं. और इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वोटर्स हु चूज वन कॉमन रिप्रेजेंटेटिव. इज दिस क्लियर? Is this clear? What is a constituency? Thank you, Rakhi. Rest of you? Rest of you, is this clear? Thank you, Ajay. Thank you, Nidhi. Thank you, Sanya. Thank you, Fiza. Amazing. Right. Let's move forward. We are going to study about what are some of the common malpractices done by politicians during election campaign. You can guess this on chat. क्या क्या गलत काम है जो इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरिंग पॉलिटिशियंस करते हैं इन जनरल? व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द बैड थिंग्स डन बाय पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग कैंपेन्स? You can quickly answer this on chat. Distribution of money, distribution of alcohol, correct? What else? Distribution of money, what else? Do you think all violence? Very good point, very important point. Riots, misuse of power. How do they misuse power, Sanya? You have to be slightly more specific. Do you think all candidates give election tickets to wrong candidates? Amazing, Rakhi. So they give election tickets to people with criminal backgrounds, power of money. Amazing, right? So all of these things that you have said is what you have to write. Okay? क्या मैल प्रैक्टिसेस है पॉलिटिशियंस की, हम एक एक करके क्विकली पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज, एक तरीका होता है बिहेव करने का. मैल प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होगी जो आप, अगर आप उस तरीके से उल्टा बिहेव करते हो. वो तरीका कौन डिसाइड करता है? वो तरीका इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है. व्हाट इलेक्शन कमीशन डज इज it basically creates a code of conduct where everything is written down, what is the right behavior. Okay, so the wrong behavior will be any behavior which does not follow the code of conduct. A malpractice is any practice that does not follow the code of conduct written by the election commission. Okay, so now we are looking at what are these malpractices that are done in India. Sabse first, misuse of money by politicians. What they do is that they use money for wrongful things, like they distribute money to people, they distribute alcohol to people, right, in order to buy their votes. So that is misuse of money by politicians. Then many politicians give tickets to candidates with criminal backgrounds. तो जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके बहुत लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट उनको पार्टी की टिकट मिलती है. उसके साथ साथ वायलेंस होती है इलेक्शंस में, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है. फिर लीडर्स गिविंग इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग that can be seen in the Nehru family, it can be seen in BJP, it can be seen in Mulayam Singh Yadav's family, it is seen in every political party. So giving tickets to your own relatives by unfair means is also one of the malpractices. Okay, now what are overall challenges in conducting a free and fair election? Money का misuse होना, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी इलेक्शन टिकट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को देती है, वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, एंड अपने ही रिलेटिव्स को फ्री टिकट देना
ये 4 मेन चैलेंजेस है जो आपकी मैल प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो हमारे देश के कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन लिखता है उसके खिलाफ जाते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इलेक्शन टिकट माने प्रदूम कि आप अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करते हो इलेक्शन में, तो जिसको आप टिकट दोगे वो आपकी तरफ से खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। थैंक यू अजय, थैंक यू निधि, थैंक यू सानिया, थैंक यू अरमान। वेटिंग फॉर 2 or 3 more of you. थैंक यू राखी, थैंक यू प्रदूम। राइट, नाउ हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स ऑलरेडी करी है, तो हम वो पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो दीज आर फ्यू सजेशंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो अभी तक हुआ नहीं है, बट सजेशंस है कि हम ऐसे अपना सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो द फर्स्ट सजेशन इज गिविंग 50% सीट्स टू वुमेन। सेकेंड सजेशन इज कि अगर कोई भी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसको इलेक्शन में ना खड़े होने देना। थर्ड इज कि गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, ताकि मिसयूज ऑफ मनी ना हो, ताकि करप्शन ना हो, ताकि सारे पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड से ही कैंपेन कर पाए। सबके पास बराबरी का पैसा होगा तो बराबरी की कैंपेन हो पाएगी, राइट? उसके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैक, वो तो पुराना वाला ही पॉइंट है। तो 3 मेन पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? ये सम आइडियाज है जो आपकी बुक में लिखे हैं। आप इसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है हमारी इलेक्शन सिस्टम में। आई थिंक दैट विल एड ऑन टू योर आंसर। अगर ये 3 पॉइंट्स लिखे एंड 2 more points about what do you think are some things that should be a part of electoral reforms, like let's just share on chat. What do you think should be a part of what more can be a part of improvement in election system? I personally feel कि किसी भी फैमिली से आफ्टर 2 generations, थर्ड जनरेशन को हक नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, ताकि हम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बने। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रिफॉर्म्स फ्रॉम माय एंड। 50% women seats are reserved in Maharashtra, only in Maharashtra, Ajay, and that also at MCD level. So that's not at like, it's at panchayat level and MCD level. Seats should be reserved for lower castes. Okay, Shubham, everyone should have equal OR. I didn't understand. What else? Let's think deeper. How can we stop violence? Violence is one of the main reasons that creates fear around elections. How can we stop that? Right? So a few things that you can add on from your end, okay, including these 3 points. 3 points ये सबसे ऊपर लिखने ही है, and 2 points नीचे अगर आप अपनी तरफ से लिख पाओ तो, right? Awareness to spread in youth amongst importance of voting. Ajay, that already happens, but also should happen at maybe a digital platform, right? Because now a lot of youth is involved in politics at digital, like on smartphones. So maybe this awareness should go online. Below caste should be given a chance. Thank you, Arman. Yes, very important. They are given a chance, but maybe not at center level. So maybe that's a good thing. Like that's something that we can do. Okay. Right. So this is how you add a few responses of your own. उसके साथ साथ ये एक फैक्ट फाइल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 या 3 1 मार्कर्स है। आई विल अंडरलाइन देम। सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ 1951 to 52 के बीच में। हमने ईवीएम मशीन्स यूज करना स्टार्ट करा 1990 से, और यहाँ से जो है नोटा के बारे में ये 2 मार्कर बना देता है, ठीक है? नोटा में क्या होता है कि अगर कोई वोटर को किसी को भी वोट नहीं करना है, राइट, तो एटलीस्ट वो जाके वोट कर सकता है, और वो वोटिंग में लिखेगा नो टू एनी पार्टी या फिर नन ऑफ द अबव, राइट? तो जब आप नोटा पे क्लिक करते हो तो आपने एटलीस्ट आपका वोट डाला है, तो आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा है। बट क्योंकि आप सबसे डिसअपॉइंटेड हो
तो आपने नोटा में अपना वोट डाला है। तो ये ऑप्शन अभी हमें रिसेंटली मिला है, ठीक है। This option is possible only because of our EVM, our voting machine. Also, EVM has made it easier for disabled people or differently abled people to vote. It has also reduced the cutting of trees of paper, right? Because it's an electronic voting system. So this question comes as, what are the advantages of EVM? Or write a short note on EVM. So the three things you can write is adding nota, right? Second is it is essential for differently abled people to vote. It has made it very easier for differently abled people to vote. Third, cutting of trees has reduced, so it's environmental friendly. And fourth, it also helps in releasing the results earlier. Okay, so from ballot boxes, how we move to EVM machines, what is the advantage of the same is very clear in this box. Please make sure you read this. Then we move on to different types of elections. There are three different types of elections. First is general elections, which are held in every 5 years, that are called normal Lok Sabha elections, 5-year elections or general elections. Then there are midterm elections. ये कब होते हैं? जब दो पार्टी कोयलेट करती है, जैसे अभी शिवसेना और कांग्रेस की कोयलेशन है महाराष्ट्र में, बट अगर कांग्रेस बैकआउट कर जाए तो शिवसेना अकेले सरकार नहीं रख सकती, उनकी सरकार हिल जाएगी, खराब हो जाएगी। और अगर कोई और पार्टी ने उनके साथ कोयलेट करने से मना कर दिया, जैसे बीजेपी ने और शिवसेना ने कोयलेट होने से मना कर दिया, तो क्या होगा कि ये सरकार हट जाएगी और हमें री वोटिंग करनी पड़ेगी एक और सरकार को पावर में लाने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस, जो ये 5 साल से के खत्म होने से पहले ही अगर कोalition ब्रेक हो जाती है तो ये मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। बाय इलेक्शन सिर्फ इंडिपेंडेंट गद्दी के लिए, एक सीट के लिए होते हैं। ये वो सीट होती है जिसके अगर कोई भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो लोकसभा का है, विधानसभा का है या लोकल गवर्नमेंट का है, इफ दैट पर्सन पासेस अवे या फिर किसी भी कारण से उनकी सीट वेकेंट होती है, तो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन दोबारा होते हैं, राइट। मिड टर्म इलेक्शन पूरे स्टेट के दोबारा हो रहे हैं, बाई इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के दोबारा हो रहे हैं जिसका इंसान पास रहे, राइट। एंड जनरल इलेक्शन हर 5 साल में होते ही होते हैं। इज दिस क्लियर? 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्लियर? Are 3 types of elections clear? Thank you, Rakhi. Thank you, Ajay. Thank you, Sumit. Thank you, Sanya. Thank you, Arman. Right. और लास्ट चीज है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जो अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। ये ईवीएम मशीन से कनेक्टेड होती है और ये वीवीपैट में हमारा जो भी जिस भी इंसान को हमने वोट करा है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास डबल वेरिफिकेशन रहती है कि किसने किस पार्टी को वोट करा है। तो इससे नंबर ऑफ करप्शन, नंबर ऑफ स्टीलिंग ऑफ वोट्स, दैट रिड्यूसेस अ लॉट। With this, we come to the end of this chapter. It is a very easy chapter. Please go have a read today. Do the questionnaire of this chapter today and make sure that you complete this chapter ekdam completely. Tomorrow when we come, you can ask me doubts from this chapter and then we can study the 3rd chapter. Okay? I will stop the recording.